اور اس چیز میں خدا کا شکر اس کے نام کی تعریف اور تمجید کرتا ہوں کہ خدا کا فضل ہماری زندگی کے اوپر ہے، اس کے کرم سے ہم اس کے قدموں میں جھکتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو، میں اپنے خاندان کے لیے خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں اور بالخصوص ہرمون کے لیے 19 تاریخ کو یہ 2 سال کا ہو گیا ہے۔ میں خدا کا شکر اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی گروتھ کے لیے، اس کے بڑھنے کے لیے، صرف اس بات کے بڑھنے کے لیے نہیں کہ وہ بڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جس طور پر وہ میوزک سے محبت کرتا ہے، تبلے سے محبت کرتا ہے، یہ بے بیان ہے۔ میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ خدا اسے برکت دے اور خدا ان کے لیے گاتا بجاتا رہے اور اس کی خدمت میں بڑھتا چلا جائے۔ Praise the Lord. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ کلام کیا تاکہ کرائسٹ کی ٹیچنگ ہے اس کے مطابق، اس میں کیا چیزیں بتائی تھی، کسی کو یاد ہے؟ بولیے۔ دعا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ قرائت کرو، دعا کرو اور روزہ رکھو۔ قرائت کرو، دعا کرو اور روزہ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں فرض ہیں، یہ تینوں چیزیں حکم میں ہیں اور یسوع کا حکم ماننا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کے حکم کو نہیں مانتے تو پھر ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم پھر اسے کیوں مانتے ہیں؟ اس کو ماننا، اس کا مطلب اس کے حکموں کو ماننا۔ اگر آپ کرائسٹ کو مانتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ آج ایک بڑا خاص میسج اور خاص تعلیم میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں اور یہ بھی فاسٹنگ کے تعلق سے ہے، لیکن اس کا انداز اور انداز سے ہے اور جو کچھ دنیا کے اندر فاسٹنگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا، اور جو فاسٹنگ ہم کرنا چاہتے ہیں کبھی چاہیے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج آپ کو دلہن کا روزہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کس کا روزہ؟ دلہن کا روزہ۔ کس کا روزہ؟ دلہن کا روزہ۔ اور اس سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ کس طور پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، اس کا 9واں باب، اس کی 14ویں آیت سے پڑھیں گے۔ 9واں باب، اس کی 14ویں آیت۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے۔ اور نہیں، میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتی، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہیں اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی مشکوں میں بھرتی ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ آمین۔ یوحنا کے جو شاگرد بڑے جوش کے ساتھ اور بڑا مخلصانہ جو سوال کے ساتھ کرائسٹ کے پاس آتے ہیں، جیسا ہم نے پڑھا ہے، یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس کہ وہ یسوع کے شاگردوں کے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے بڑی الجھن کا شکار تھے، بڑی پریشانی کا شکار تھے، کنفیوز تھے۔ اور وہ
وہ سوچتے تھے کہ یسوع نے ان کو روزے کی تعلیم نہیں دی، کیونکہ وہ تو روزہ رکھتے تھے، اور یوحنا نے ان کو روزہ کی تعلیم دی تھی۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ریاکار فریسی وہ تو کیا کرتے تھے، ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنا لازمی جو جز ہے اس کے شاگرد اس لازمی جز کو کیوں جو ہے وہ نہیں پورا کر رہے یا اس کو رد کر رہے ہیں۔ تو شاید وہ یہ بھی سمجھتے ہوں کہ یسوع مسیح کو شاگردیت یا لیڈرشپ کا فقدان ہے، کہ بھی پتہ نہیں یہ اس کی سنتے نہیں، اس کے شاگرد جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ شاگردیت یا لیڈرشپ یسوع مسیح کو نہیں آتی۔ اور اس سے یہ بھی اکثر ہو رہا تھا جب شاگردوں اس کے شاگرد یسوع مسیح سے سوال کر رہے ہیں کہ یوحنا یسوع مسیح سے زیادہ کیا ہے وہ روحانی ہے، وہ زیادہ اسپرچل کیا ہے وہ لیڈر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوحنا کے شاگرد کیا کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا جو استاد یوحنا وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ تو یہ ان سوالوں سے یہ ساری چیزیں ہم عکس کر رہے ہیں کہ وہ برتری کو دکھا رہے ہیں، اور یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کو ذرا وہ اپنا تنقید کی زد کے اندر ہے کہ یہ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اب یسوع نے جو ہے اس کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا، اور اسی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی۔ وہ کہہ رہے بڑی عجیب بات ہے یوحنا کے شاگرد کہ اگر جو ہے دلہا براتیوں کے ساتھ ہو تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کریں، وہ روزہ رکھیں۔ دیکھیں جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے تو کیا وہ ماتم کر سکتے ہیں؟ تو اس کے دوست کیسے ماتم کر سکتے ہیں؟ کبھی براتیوں کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں ہوں یا ماتمی لباس کے اندر ہوں؟ ٹھیک ہے، ہرگز نہیں۔ ہمیں تو یہاں تک یسوع مسیح نے تو صرف بیان کی کہ ایک شخص شادی کے لباس میں نہیں آیا تھا تو کیا کر دیا گیا، اور جب بادشاہ نے کیا کہا، میاں تو شادی کے لباس کے بغیر آ گیا ہے، تو اسے کیا کر دیا گیا، اسے باہر کر دیا گیا۔ تو گویا یہ جو ہے جو براتی ہے یا شادی ہے، وہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس میں کیا کیا جائے، خوشی اور شادمانی کی جائے، اس پر جو ہے وہ جوش ہو، نعرے ہو، ناچنا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شادی کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کرائسٹ نے اس کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو وہ کیا کریں گے، بولیے، اس وقت وہ کیا کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ آمین۔ آپ کو اب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں جو ہے نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح نے پہلی دفعہ اس بات کا اعلان کیا اور اقرار کیا کہ میں دلہا ہوں۔ آمین۔ یسوع مسیح نے کہا میں کیا ہوں، دلہا ہوں۔ اس نے یہی کہا نا کہ دلہا جب تک براتیوں کے ساتھ ہے تو براتی کس طور پر ماتم کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ یسوع مسیح نے خود اپنے آپ کو دلہا کیا کیا ہے، ڈکلیئر کیا ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ یسوع مسیح کیا ہے، دلہا ہے۔ اب جب دلہا صلیب پر اپنی جان قربان کر چکے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ ظاہری طور پر، فزیکلی طور پر وہ شاگردوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، فزیکلی طور پر وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تو پھر وہ اسی طرح جس طرح تم مستقل مزاجی کے ساتھ
اور بڑی شدت سے روزہ رکھتے ہو، میرے شاگرد بھی کیا کریں گے؟ اسی مستقل مزاجی اور شدت سے کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ آمین۔ اور ان کے روزے میں کیا شامل ہوگا؟ ان کے روزے میں جو ہے وہ اس بات کے لیے ترسیں گے کہ مسیح کو دیکھیں، اور غم کے مارے وہ بہتے جائیں گے۔ غم کے مارے کیا کریں گے؟ وہ جب بہتے چلے جائیں گے۔ کس بات کے لیے؟ کہ دلہا ان سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ جدا ہو گیا ہے۔ آمین۔ وہ روزے کا ایک نیا نمونہ جو ہے اس جہاں پر وہ پیش کر رہا ہے، جو جس میں کیا چیزیں شامل ہیں کہ ایسی بڑی ڈیووشن سے بھرا ہوا وہ روزہ ہے جو کیا ہے؟ دلہے کی خوبصورت اور محبت اور موجودگی کا سامنے کرنے کی خواہش اس میں موجود ہے۔ آمین۔ اس روزے میں کیا شامل ہے کہ یسوع مسیح کی خوبصورت اور محبت سے بھری ہوئی پریزنس، محبت سے بھری ہوئی کیا ہے؟ موجودگی کی خواہش اس میں شامل ہے۔ آمین۔ پرانے عہد نامہ میں جب روزے جب رکھا جاتا تھا تو وہ کیا کیا جاتا؟ دکھ کا اظہار کیا جاتا تھا کہ خدا جو ہے ان کو کیا کرے؟ اپنے لوگوں کو جسمانی طور پر تباہی سے نجات دلائے، اور وہ جو ہے خدا سے جو ہے روزہ رکھ کر التجا کرتے تھے کہ ان کے دشمنوں سے ان کو کیا ہو؟ رہائی حاصل ہو۔ بہت آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طور پر جو ہے وہ اس بات کے لیے روزہ رکھتے تھے کہ ہمیں جو ہے یہ مل جائے یا ہمیں وہ مل جائے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر یہ ساری دینی مشق کا حصہ بن گئے ہیں۔ فریسی اس کو اپنائے ہوئے ہیں، جو ہے یونا کے شاگرد اس کو اپنائے ہوئے ہیں، اور پھر پوری بائبل مقدس میں ہمیں روزہ اسی انداز کے ساتھ ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن کرائسٹ اب ایک نئے کی بابت، کچھ نئے کی بابت کا ذکر کر رہا ہے۔ آمین۔ پرانے کی بات نہیں کر رہا۔ آمین۔ پرانے کی کیا ہے؟ وہ بات نہیں کر رہا۔ کس کی بات کر رہا ہے؟ اب نیا انداز ہوگا روزہ رکھنے کا۔ آمین۔ ایک نئی سوچ، ایک نئی خواہش جو ہے وہ اس روزے کے اندر شامل ہوگی۔ یہ روزہ ایک جو ہے نئی خواہش کے ساتھ بھرا ہوا ہے، ایک جو ہے نئی ڈیووشن کے ساتھ بھرا ہوا ہے، ایک نئی قوت کے ساتھ بھرا ہوا ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور کرائسٹ نے اس کے اوپر کہا ہے کہ کوڑے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، لہذا یہ پرانے کو نئے کے ساتھ مکس نہیں کرتا ہے، پرانے کو نئے کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ جو کرائسٹ نے روزے کی تعلیم دی ہے یا روزہ رکھنے کی بابت ایک لائن کے اندر بیان کیا ہے، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ کوڑے کپڑے کے پیوند کو پرانی پوشاک کے ساتھ نہیں لگائیں گے ہم، نئی یا پرانی مشقوں میں نئی مین نہیں بھریں گے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹیچنگ کو اس طور پر مکس کر دیا جائے؟ ہم اس کی ٹیچنگ کو اور اس کی جو ہے اس کی سارے انداز کو اپنانا ہوگا۔ آمین۔ کیا ہم نے یہ نہیں پڑھا کرائسٹ نے کیا کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کرنا؟ جو ہے وہ اپنا منہ دھونا۔ اس نے کیا کہا اس انداز میں کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کرنا؟ تیل لگانا، اور پھر کیا کرنا؟ منہ دھونا۔ وہ یہ نہیں کہا کہ منہ بگاڑنا، اسے یہ نہیں کہا کہ ریاکاروں کی طرح اپنا منہ بگاڑنا یا خاک اور رات کے اندر بیٹھ جانا۔ اب یہ کرائسٹ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب پرانی مشقوں کے اندر نئی میں نہیں بھری جائے، یا پرانی پوشاک میں نیا کو یا کوڑا کپڑا نہ لگایا جائے۔ آمین۔ اس لیے ہم جو ہے آپ ٹیچنگز دنیا کے اندر سنیں کہ اس کو مکس اپ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو لیلا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوڑا کوڑے کے کوڑا نیا لباس ہو، نیا کپڑا ہو، نئی میں نئی مشقوں میں کیا کی جانی چاہیے؟ وہ بھری جانی چاہیے۔ آمین۔
Praise the Lord. अब आपको जो बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है कि मैं दुल्हा हूँ, मैं क्या हूँ, वो क्या हूँ, दुल्हा हूँ, और फिर जो है इसका फिर अल्टीमेटली इस बात को जब हम ये बात निकाल लेते हैं कि फिर जब उसके लोग क्या कहलाते हैं, दुल्हन। आमीन। क्या कहलाते हैं, बोलिए, दुल्हन। अब बात ऐसा होता है कि जब मर्दों से मुखातब किया जाए क्या तुम मसीह की दुल्हन है, तो क्या थोड़े से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और हमें इस बात को समझना होगा कि कलीसिया क्या कहलाती है, बोलिए, मसीह की। कौन कौन मसीह की दुल्हन है, हालेलुया। कौन कौन मसीह की क्या है, वो दुल्हन है। और जब तक क्राइस्ट फिजिकली तौर पर शागिर्दों के साथ था, वो जब उनकी जिंदगी में खुशी थी, शादमानी थी, वो उसकी जो है फिजिकल जो है कुर्बत के अंदर जो है वो क्या करते थे, खुशी और राहत को जो है वो पाते थे। आमीन। और क्राइस्ट भी उनके जो है कुर्बत और उनकी नजदीकी में वो रहता था और उनके साथ खुशी वो पाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। रसूलों ने यीशु मसीह के कुर्बत का जो है वो बड़ा को एंजॉय किया जब वो इस जमीन के ऊपर चलता वो फिरता था। और उस दौरान में यीशु मसीह ने जो है उनको रोजा रखने के बारे में कभी मजबूर नहीं किया कि पतरस, याकूब, यूहन्ना जो है मत्ती तमाम शागिर्दों के लिए कभी नहीं कहा कि तुम रोजा रखो। उसे कभी भी हमें कहीं पर जिक्र नहीं मिलता कि वो रोजा रखे। इवन तो एक दफा तो सबत के रोज वो क्या कर रहे थे, फलियां जो है वो खा रहे थे। तो यीशु मसीह ने उनको भी उसने डिफेंड किया है कि मैं इनके साथ हूँ, जो है सबत का मालिक इनके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन भाइयों, अब जो सिचुएशन बदल गई है, अब क्या हुआ है, सिचुएशन बदल गई है। अब चीजें क्या हो गई हैं, तब्दील हो गई हैं। जब यीशु मरने के बाद उनसे फिजिकली तौर पर जुदा हो गया तो क्या हुआ, फिर आप देखिए रसूलों को, आप देखिए शागिर्दों को, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, नादम करना शुरू कर दिया। मेरा मतलब रोजा रखना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। खुदा इसका ये मतलब नहीं है, गौर से सुनिए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उसकी कुर्बत मिल नहीं सकती है, हमें जो है उसकी हजूरी मिल नहीं सकती है। आमीन। अब देखिए कि यीशु मसीह जुदा हुआ, रूहुल कुद्दुस उसने भेजा है। और याद रखिए कि नए अहदनामा में जब रूहुल कुद्दुस ईमानदारों को सौंपा गया है, वो क्या करता है, वो खुदा की कुर्बत और नजदीकी को जो है वो महसूस कराता है। आमीन। रूहुल कुद्दुस क्या करता है, वो यीशु की हुजूरी, वो यीशु की कुर्बत को हमें जो है वो महसूस कराता है। वो हमारे अंदर एक ऐसी ख्वाहिश को पैदा करता रहता है ताकि क्या हो सके, हम उसकी जो है वो कुर्बत के लिए तरसा रहें। आमीन। और हमारे अंदर ये ख्वाहिश जो है वो बढ़ती चली जाए। और इसलिए पौलुस रसूल जो है वो करंथियों के खत में क्या कहता है कि खुदा रूह कुद्दुस खुदा की तय की बातों को जानता है। आमीन। खुदा की तय की बातों को समझता है ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाए, हम उसके इल्म से मामूल होते चले जाए। और कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हा जुदा है और फिर उसके पीछे दुल्हन क्या करे, वो उसे भूल जाए रूहुल कुद्दुस जो हमें बख्शा गया है ताकि हम खुदा की तय की बातों को समझ सकें। और अगर आप ठीक तौर पर फास्टिंग को समझना चाहते हैं, होली स्पिरिट की अंदर जिंदगी बसर कीजिए। होली स्पिरिट के अंदर रूहुल कुद्दुस की
معمولی کے اندر اور اس پہ رہ کر کیا کریں ہم جو ہے اس کی قربت اور نزدیکی کا مزہ چکھیں. ہلیلویا. اس سے پولس رسول نے کہا ہم کو نہ تو دنیا کو رو دیا بلکہ وہ رو پایا جو خدا کی طرف سے ہے کہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں. Praise the Lord. اس لیے جب تک ان باتوں سے ہم واقفیت نہیں حاصل کریں گے یقین جانیے جو ہے کلیسیا اس کی دلہن جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر قطعی کھڑی نہیں ہو پائے گی جو ہے جس کی بابت یہاں بڑے مان کے ساتھ یسوع مسیح نے یا یوحنا کے شاگردوں کو کہا ہے. اسے یہ معلوم ہے وہ سے سنیے اس کو یہ معلوم ہے کہ میں جو یوحنا کے شاگردوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا کریں گے میرے بعد کیا کریں گے ماتم کریں گے میرے بعد یہ کیا کریں گے روزہ رکھیں گے. دراصل وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جب میں ان سے جدا ہوں گا تو یہ میری جو ہے موجودگی کے لیے یہ میری قربت کے لیے یہ میری نزدیکی کی خواہش کے لیے کیا کریں گے ترسیں گے اور ان کے اندر یہ ہمیشہ خواہش تڑپتی رہے گی کہ میں یسوع کی قربت میں یسوع مسیح کی نزدیکی میں یسوع مسیح کی حضوری میں ہی رہوں اور اس کے دیدار کے طالب رہنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے. اگر کلیسیا اگر دلہن اس بات کے لیے کوشاں نہیں رہتی ہے تو پھر کیا یوحنا کو شاگردوں کو جو یسوع مسیح نے کہ بڑے مان کے ساتھ کہا ہے کہ میرے بعد یہ روزہ رکھیں گے یہ میری موجودگی کے لیے ترسیں گے یہ میری موجودگی کے لیے کیا کریں گے جو ہے وہ کوشاں رہیں گے میری قربت میری نزدیکی میری حضوری میری محبت کے لیے کیا کریں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ طالب رہیں گے. Amen. Praise the Lord. یسوع مسیح ان کی ہمارے دلوں کے اندر ایسی خواہش کو جگانا چاہتا ہے جس سے کبھی پہلے جو ہے جس سے پہلے کبھی ہم نہیں جانتے تھے لیکن جب اس کے جانے کا زخم شاگردوں کو لگا نا جب اس کے جانے کا زخم ان کو لگا کہ اب وہ تو فزیکلی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہوگا اب ہم اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا کریں گے فیتھ کے ساتھ اپنی جگہ کی فرق ہے. میں فزیکلی طور پر بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کس کی بات کر رہا ہوں ہم تو ایمان کے ساتھ کرائسٹ کو پاتے ہیں دیکھتے ہیں اور شاید اس ایمان کے لیول تک ابھی اس تک پہنچے بھی نہیں ہیں اور یہ فاسٹنگ آپ کو خدا کی نزدیکی آپ کو مسیح کی قربت اور اس کی حضوری کا احساس دلاتی رہے گی. آمین. اور یہ ماتم اور یہ روزہ یہ اس طور پر فاسٹنگ آپ کو کیا کرے گی اس بات کے لیے اٹھاتی رہے گی کہ میں اپنے مسیحا کو دیکھتا رہوں میں اپنے مسیح کو جو ہے وہ اسی طرح جو ہے اس کا دیدار حاصل کرتا رہوں. آمین. دلہن کے روزے کی اگر خواہش آپ نے دیکھنی ہے تو غزل کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 8ویں آیت کھل جائے. 5 باب اس کی 8ویں آیت اس کا دوسرا باب اس کی 5ویں آیت. غزوہ غزلان 5 باب اس کی 8ویں آیت. اے یروشلم کی بیٹیوں میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اسے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں. آمین. میں کیا ہوں بولیے میں کیا ہوں میں عشق کی بیمار ہوں. غزل کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 5ویں آیت میں بھی یہی کچھ لکھا ہے. کشمش سے مجھے قرار دو سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں. میں کیا ہوں عشق کی میں کس چیز سے تسلی پا جاؤں میں لو سک ہوں. عزیز بھائیو کرائسٹ
जो है वो यूहन्ना के शागिर्दों को ये कहता है कि जब मैं इनसे जुदा होऊंगा तो ये लवसिक होंगे। हालेलुया। ये जब मैं इनसे जुदा हो जाऊंगा, जब मैं आसमान पर चला जाऊंगा तो ये क्या कहलाएंगे? इश्क के बीमार। हालेलुया। क्या कहलाएंगे? इनका स्टेटस क्या होगा? लवसिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बोलिए। लवसिक कहलाएंगे, इश्क के बीमार। वो मुझे किससे करार दो? सेबों से करार दो, या मैं से वो किशमिश से करार दो। क्या मुझे सेब करार देंगे? क्या मुझे किशमिश करार देंगी? जो इश्क का बीमार हो उसको तो अपना महबूब चाहिए। अजीज भाइयों, जो इस बात को मैं आपके अंदर इंजेक्ट करना चाहता हूँ कि अगर क्राइस्ट जुदा हुआ है हमसे, अगर 2000 साल पहले यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठा और जब वो आसमान पर चढ़ गया और अब जो है फिजिकली तौर पर वो हमसे जुदा है, तो फिर यीशु मसीह ने शागिर्दों या यूहन्ना के शागिर्दों को क्या कहा? जब तक जो है दूल्हा बरातियों के साथ है वो किस तौर पर मातम कर सकते हैं। जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तो वो क्या करेंगे? बोलिए। वो रोजा रखेंगे। हाँ, वो इस तौर पर मातम करेंगे, वो इस तौर पर जो है फास्टिंग करेंगे, वो इस अंदाज के साथ मातम करेंगे। उनके अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश जो है वो जो है छाई रहेगी। उनके अंदर एक अजीब सा जो है खमार रहेगा। मैं कब अपने महबूब को देखूं, मैं कब अपने जो है दूल्हे को देखूं, मैं कब जो है अपने दूल्हे का दीदार हासिल करूं, उसकी एक झलक मुझे मिल जाए, मुझे एक उसकी हजूरी की झलक मिल जाए। और इसके लिए वो क्या करेगी? ना कुछ खाएगी ना पिएगी। उसे सेब तसल्ली नहीं देते, उसे किशमिश तसल्ली नहीं देती, उसे रोटी तसल्ली नहीं देती, उसे प्यार तसल्ली या पानी तसल्ली नहीं देता। उसे यीशु का प्यार चाहिए। हालेलुया। उसे यीशु मसीह की हजूरी चाहिए, उसे यीशु मसीह की गुरबत चाहिए, उसे यीशु मसीह की नजदीकी चाहिए। इसके लिए वो क्या करेगी? उसके लिए वो यहाँ इश्क की बीमार है। वो कहती है मैं इश्क की बीमार हूँ। आपको मालूम है गज़ल किस बात को पेश करती है? ये दुल्हन और दूल्हे को पेश करती है, ये यीशु मसीह और उसके चर्च को पेश करती है। हालेलुया। ये बयान करती है कि दुल्हन यानी चर्च यानी कलीसिया इश्क की बीमार है। क्या है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसको याद करते हैं। शागिर्द उसलिए रोजे में रहते थे, इसलिए जो है वो फास्टिंग करते थे। आप देखिए कि जब ईमान की किताब में आप पढ़े जो है ये रसूलों का बयान, रसूलों का जो है तर्ज जिंदगी जो है वो बदल गया। वो रोजों के अंदर आ गए, वो फास्टिंग के अंदर आ गए। उनके रोजे रखने का मकसद क्या था? उनकी जो है वो वो इस अंदाज के साथ वो किस तरह क्यों बैठ गए हैं? क्योंकि वो जो है इश्क के बीमार थे। हालेलुया। वो अपने दुल्हा के मुंतजर थे, वो अपने दुल्हा को देखना चाहते थे, वो अपने दूल्हे का दीदार हासिल करना चाहते थे। और वो जो है क्या करते थे? वो उन गुजरे औकात को याद करते थे जब क्राइस्ट उनके साथ जो है झील में या कश्ती में, जब उसके साथ जो है वो मैदानी इलाकों में, कभी यहूदिया में, कभी गलील में, कभी जो है वो अपना यरूशलेम में, कफरनहूम में वो उनके साथ फिरता था। वो इस वाक़या को याद कर जो है उस कुर्बत, उस नज़दीकी और उस राब और उस हजूरी के मज़े का जो है वो क्या करते हैं? जो है टेस्ट लेती है। आमीन। यही तो बात है अपने महबूब के लिए, अपने दुल्हे के लिए। एक इस तौर पर हम उसके मुंतजर हैं जो क्राइस्ट के साथ जिंदगी बसर करते हैं, जो उसे दुल्हा मानते हैं। तो दुल्हन क्या करेगी? बोलिए। वो क्या करेगी? उसे किस तौर पर चैन आ सकता है, ये उसको किस तौर पर है वो भूख लग जाती है। कलीसिया को कैसे भूख लग जाती है? कलीसिया को उसकी दुल्हन को कैसे प्यास जो है पानी की शिद्दत जो है उसे पानी की जो है वो प्यास लग सकती है। जबकि दुल्हा का वो इंतजार कर रही हो, दुल्हा का किसी को इंतजार हो और वो जो है खाने और पीने के चक्रों के अंदर फंसा हुआ हो, ये कैसे मुमकिन है? लव सिकनेस जो है उसके मातम को पेश करती है। लव सिकनेस जो है इसकी बीमारी जो है वो उसके मातम को पेश करती है कि मैं अपने दुल्हा को देखना चाहता हूँ, मैं अपनी दुल्हन को देखना चाहता हूँ। हालेलुया।
آپ کو اس جگہ کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا کہ آپ اگر دلہن ہیں، اگر آپ کلیسیا اس کی دلہن ہیں، تو پھر اس کی کنڈیشن کیسی ہوگی؟ دلہن کی کنڈیشن کیسی ہوگی؟ بولیے، دلہن نظر کیسے آئے گی؟ کھاتی پیتی اور گاؤں یہ ہے اس دنیا کے اندر لوٹ پوٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. وہ کیسے نظر آئے گی؟ وہ روزے کے اندر نظر آئے گی، وہ عشق کی بیمار ہوں گے. ہیلیلویا. مجھے کوئی شخص دیکھے تو میں عشق کا بیمار نظر آؤں. میں اپنے کرائسٹ کے لیے، اپنے مسیح کے لیے جو میرا دلہا ہے، آمین، وہ کیا ہو، میں اس کی محبت میں، میں اس کے دیدار کے لیے، میں اس کی قربت کے لیے، میں اس کی نزدیکی کے لیے ترسا نظر آؤں. کلیسیا کو اس جگہ کے اوپر آنا ہوگا، اور جب تک کلیسیا اس جگہ کے اوپر نہیں آئے گی تب تک وہ اپنی پریپریشن کو نہیں کر سکتی ہے. یسوع مسیح اس کلیسیا کو، اس دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے جو اس کی محبت میں ترستی ہے، جو اس کی محبت میں تڑپتی ہے. آ یسوع ناصری، کہتے نا، آ یسوع جیا دلہن کو روح تڑپے میری، جہاں پیاسی پیاسی میری. کاش کوئی آ کر یہ گائے اور اونچی آواز کے ساتھ آ کر یہ کہے، آ یسوع ناصری، آ یسوع جی دلہن کو لینے. یسوع جیا دلہن کو لینے، آ یسوع جیا تڑپے میری، جا پیاسی پیاسی میری، روح تڑپے میری، جا پیاسی پیاسی میری. تیری حمد سناواں میں، تیری مدح سناواں میں، تیری حمد سناواں میں، تیری مدح سناواں میں. آ یسوع جیا دلہن کو لینے، آ یسوع جیا دلہن کو لینے، روح تڑپے میری، جا پیاسی پیاسی میری، روح تڑپے میری، جا پیاسی پیاسی میری. تیری حمد سناواں میں، تیری مدح سناواں میں، تیری حمد سناواں میں، تیری مدح سناواں میں، تیری حمد سناواں میں، تیری مدح سناواں میں. دلہن کیا کہتی؟ دلہن کیا کہتی ہے؟ دلہن کیسی پیاسی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ جہاں میری کیسی ہے؟ ارے جی بھائی بھائیو، یہ دلہن کی حالت ہے جس کی بابت یسوع مسیح نے بڑے مان کے ساتھ یہ کہا تھا یہودا کے شاگردوں کو کہ جب دلہن ان سے جدا ہوگا تو اس کی دلہن اسی طرح ترسے گی، وہ اس کی محبت کے اندر سرشار ہوگی، وہ اس کی بیمار کہلائے گی، اس کے عشق کے اندر جو ہے وہ نہ روٹی کی نہ جو ہے پانی کی جو ہے وہ تلاش کرے گی. اس کو تو اس بات کی فکر ہے کہ اے یروشلم کی بیٹیوں، اگر جو ہے میرا محبوب تم کو مل جائے تو مجھے بتانا اور اسے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں. اس دنیا کے اندر جو ہے چرچ جو ہے وہ اس بات کو بیان کرے، یہ دنیا کہے کہ یہ عشق کا بیمار ہے، یہ کہے کہ یہ ایماندار اپنے یسوع سے کے پیار کے اندر جو ہے وہ سرشار ہے، یہ کہے دنیا کہ یہ تو عشق کا بیمار سا معلوم ہوتا ہے. ہمارے جو ہے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے چلنے پھرنے سے، ہمارے جو ہے گفتگو کرنے سے کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، یہ تو کہیں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ عشق کا بیمار ہے. یہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کے اندر ذرا سی بھی یسوع مسیح کے لیے محبت ہے. کوئی ایسا دل نہیں جو اس طرح سے معلوم کر سکے.
सिर्फ और सिर्फ दुल्हन का दिल है अपने दुल्हा के लिए, जो इसको मालूम कर सकता है कि मैं यीशु मसीह जैसा दुल्हे का इंतजार करता हूँ। हालेलुया। और उसको कोई शख्स तसल्ली नहीं दे सकता है, उसको कोई शख्स जो है वो तसल्ली दे ही नहीं सकता है सिवाय यीशु मसीह, चाहे रूहुल कुदस, जिसकी कुर्बत जो है उसे बार बार जो है मजबूर करती है कि दुआ की तरफ से लेकर आती है, उसे मजबूर करती है कि उसके अंदर ये खाज बढ़ती चली जाती है, जब तक कि दुल्हा जो है वो रूह उसके सामने खड़ा न हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दोनों ख्वाहिशों को समझना होगा। कौन सी? खुदा की ख्वाहिश को समझना और उसके लिए अपनी ख्वाहिश को बेदार करना को समझना होगा। हालेलुया। आपकी ख्वाहिश बेदार होना शुरू हो, वो मोहब्बत की ख्वाहिश जो है वो क्या हो, वो बेदार हो। याद रखिए, इश्क के बीमार के दिल को खुदा कभी मायूस नहीं होने देगा। हालेलुया। उसने वादा किया है, इश्क के बीमार दिल को क्या करेगा, वो मायूस नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि बाइबल यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो क्या करेंगे, तसल्ली पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुबारक है वो, सुनिए, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, आसूदा होंगे। एक ऐसा स्पिरिचुअल हंगर लोगों में आएगा, एक ऐसी रूहानी भूख की तड़प उनकी जिंदगी के अंदर आएगी, और उससे पूछा जाएगा, उस भाई और उस बहन को जो दुल्हन है, उससे पूछा जाएगा, तुझे भूख लगती है? हाँ लगती है। कैसी भूख लगती है? मुझे रास्तबाजी की भूख लगती है। हालेलुया। मुझे किस चीज की भूख लगती है? मुझे रास्तबाजी की भूख लगती है। मुझे तुझे किस चीज की प्यास लगती है? तो कभी जो है, ऐ ईमानदार, ऐ कलीसिया, ऐ दुल्हन, क्या तू प्यासी होती है? हाँ मैं बड़ी प्यासी हूँ, हाँ मैं बड़ा प्यासा हूँ, मैं बड़ी प्यासी हूँ। किस चीज की प्यासी है? कि मैं तो उसके पानी की प्यासी हूँ। इसकी बाबत जो है उसने एक दफा जो है एक सामरी औरत को कहा, अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया। तू प्यासी किस चीज की है? हमने जो दुनिया के अंदर जो है ऐसी भूख और ऐसी प्यासे फिरते रहते हैं कि जैसे हमें कोई चीज मिलती नहीं है। अजीज भाइयों, नए अहद का रोजा जो है इससे कहीं बालातर है, इससे कहीं बालातर। मैं आपको बताऊं, इससे हमारी जो दुनिया की ख्वाहिशों से कहीं बालातर है। हमें जो है ये कहा जाता है कि रोजा मकसद के लिए रखा जाता है, तो मैं आज आपको एक मकसद देता हूँ कि यीशु मसीह के इश्क के लिए, यीशु मसीह की मोहब्बत के लिए, यीशु मसीह की कुर्बत के लिए, यीशु मसीह के साथ जो है उसके रूबरू होने के लिए जो है तमाम कलीसिया के एक एक मेंबर को जो है भूखा प्यासा होना होगा। हालेलुया। अगर जो है कलीसिया, अगर मुकद्दसीन, अगर दुल्हन जो है वो इस जगह के ऊपर खड़ी नहीं होती तो यकीन जानिए वो दुल्हे को रूबरू नहीं देखेगी। कौन है जो अपने दुल्हे को रूबरू देखना चाहता है? क्या आप जो है दुल्हे को रूबरू देखना चाहते हैं? तो फिर यीशु मसीह ने आप जो है यूहन्ना के शागिर्दों को कहा, ये क्या करेंगे? मेरे जुदा हो जाने के बाद क्या करेंगे? रोजा रखेंगे। हमारा रोजा किस बात को बयान करता है? मैं इश्क का बीमार हूं, मैं तो उसे देखने का मुश्ताक हूं, मैं तो जो है उसे पाने का मुश्ताक हूं, मैं तो उसकी हुजूरी की झलक देखने का मुश्ताक हूं। और ये इस बात से नजर आएगा कि मैं कितना उसकी हुजूरी के अंदर रहता हूं। मुझे फिजिकली तौर पर तो वो नजर नहीं आता, लेकिन मैं ईमान से भी उसे देख लेना चाहता हूं। रूहुल कुदस इसमें आपकी मदद करेगा। रूहुल कुदस आपके अंदर ये आग डालेगा, आपके अंदर ये ख्वाहिश को जगाए रखेगा कि तू जो है वो अपने दुल्हे की मोहब्बत में सरशार रहे, उसकी मोहब्बत के अंदर क्या कर, सरशार रहे। हालेलुया। और जब तू उसमें सरशार रहेगी तो फिर क्या होगा? जो है आप उसके कलाम के तालिब होंगे, आप उसकी जो है उसकी हुजूरी के तालिब रहेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यह कलीसिया उस जगह के ऊपर नहीं है, कलीसिया उस जगह के ऊपर नहीं है, वो लवसिक नहीं है। वो क्या है? लवसिक नहीं है। मैं दलील के साथ कहूँगा, वो लवसिक नहीं है, अफसोस के साथ कहूँगा, लवसिक नहीं है।
लव सीक्वेंस को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आइए। क्राइस्ट के लव सीक्वेंस को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आइए। मैं जो है वो चिल्लाता रहता हूँ कि आओ खुदा की हज़ूरी में जो है जुमेरात की इबादत में आकर जो है अपनी लव सीक्वेंस दिखाओ, अपने इश्क की बीमारी का इजहार कर कर दिखाओ। आप जो आओ खुदा की कलाम को पढ़ने की तरफ तवज्जो दीजिए। देखिए आपके अंदर किस चीज़ की हंगर पाई जाती है, किस चीज़ के आप भूखे और प्यासे हैं। हम तो सिर्फ ये इसलिए रोज़ा रखते हैं मेरा काम हो जाए, मैंने 40 रोज़े रखे कि मेरा काम हो जाए, और यीशु मसीह ने मेरे काम बना दिए, वो तो कर देगा, वो पीछे भी करता रहा है। उसने धीरे मुझे बीमारी ने पकड़ लिया, मैंने रोज़ा रखा तो मेरी यह दुआ यह मेरा रोज़ा कबूल हो गया। ये सारे रोजे कबूल होंगे। जो आपने बीमारी के रखे तो वो भी कबूल होंगे। आपने जो है रोजे रखे हैं अपने कामों के लिए, अपने कारोबार के लिए, आपने किसी के लिए भी रोजे रखे हैं वो कबूल होंगे। कभी इश्क का रोजा रखा है, कभी मसीह के लिए तो उसकी याद में आप तड़पते हैं कि नहीं तड़पते हैं। कभी आपने कभी ये सोचा कि मुझे अपने दूल्हे के लिए यह वो क्या रहना है, मुझे दूल्हे के लिए कुछ संहार कर लूँ मैं कभी उसके लिए भी कोई है अपना संहार कर लूँ, मैं अपना दुल्हन का सा संहार करके बैठ जाऊँ। मैं टाट ओढ़ने की तो बात नहीं कर रहा, कभी मैं महीन कतानी लिबास पहन कर उसका तारफ तो हो जाऊँ। कभी आपने ये सोचा कि दुल्हन जो है वो इस तौर पर तैयार होकर बैठे और वो दुल्हे का वेट करे, देख मेरी जान प्यासी प्यासी है, मेरी रूह तड़पती है, रूह तड़पे मेरी, देख यह मेरे मैं टाट तो नहीं बढ़ा बल्कि मैंने क्या किया है महीन कतानी कपड़ों से मुलब्बस हूँ। इस तौर पर जो है वो अपने आप को सवारिए। क्राइस्ट के इस मान को जो उसने यूहन्ना के शागिर्दों के सामने ये कहा है, मेरे बाद रोज़ा रखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप जो है दुल्हन क्यों रोज़ा रखेगी? वो इसलिए जो है उसकी जो है शदीद ख्वाहिश और इसकी बीमार में एक बड़ा मकसद पैदा करता है। ये जो शदीद बीमारी है, जो इश्क की बीमारी है, जो यीशु मसीह के साथ आप करते हैं, हम कहते हैं बड़ी मोहब्बत करती हैं, तो फिर ये जो है वो क्या करेगा, ये दुल्हन का रोज़ा उसको क्या करेगा, उसको जो है वो तमाम जो है उन तमाम चीज़ों को जो तब्दील करने वाली है उसको क्या करेगा, तब्दील करेगा। अक्सर ये आम बात है जब शादी ब्याह होती है तो दुल्हन की दुल्हा की अपनी ख्वाहिश, दुल्हन की अपनी ख्वाहिश होती है, लेकिन दुल्हा की ख्वाहिश जो है डोमिनेट कर जाती है दुल्हन की ऊपर। वो चाहता है कि आप इस तरह से नजर नहीं आए, तो इस तरह से मेकअप करके आना, इस तरह से मेकअप करके आना। ये चीज़ें जो है वो अच्छी मालूम नहीं होती। ऐ दुल्हन तेरे अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, ऐ दुल्हन इसको तब्दील कर दे। याद रखिए कि दुल्हन का रोज़ा आपको उस जगह की पर खड़ा कर देगा कि कौन सी चीज़ या तब्दील करने वाली है या तब्दील होने वाली है, वो हमारी जिंदगियों के अंदर वो तब्दील होती हुई नजर आएगी। हालेलुया। अगर आप दुल्हन का रोज़ा रखेंगे, अगर आप दुल्हन वाला रोज़ा रखेंगे, इससे हमारी जिंदगी के अंदर यह तब्दीलियां वकूዕ में आएंगी। अगर तब्दीली वकूዕ में नहीं आ रही तो मत कहिए कि मैं या उसके इश्क का बीमार हूँ, मैं उसके इश्क की बीमार हूँ, मैं उसकी दुल्हन हूँ। याद रखिए कायदा ये है कि वो हम उसकी दुल्हन हैं। अगर दुल्हन है तो फिर यह हमारी जिंदगी के अंदर इस रोज़ा से, दुल्हन के रोज़ा से क्या होगा, तब्दीली वकूዕ के अंदर आएगी। हालेलुया। रूहानी भूख ये इलाही तोहफा है, आमेन। स्पिरिचुअल हंगर ये इलाही ये गिफ्ट है जो अगर जिसके पास है वो उस भूख के अंदर जो है वो क्या करेगा, वो इस तब्दीली के अंदर बढ़ता चला जाएगा और इसके अंदर जो है वो क्या होगा, वो तरक्की करता चला जाएगा। आप अगर मसीह की दुल्हन हैं तो फिर मसीह की दुल्हन का रोज़ा यह आपकी तब्दीली का बाइस बनेगा। हालेलुया। हम खुदा से मोहब्बत करने और किए जाने के लिए बने हैं। हम क्या किस लिए बने हैं, खुदा से मोहब्बत करने और मोहब्बत किए जाने के लिए बने हैं कि हमसे मोहब्बत हो और हम उससे मोहब्बत करें और दुल्हन का रोज़ा आपकी मदद करता है। हालेलुया। मैं उसकी मोहब्बत में, मैं उसके प्यार में, मैं उसकी कुर्बत में,
मैं उसकी नजदीकी के अंदर रहूंगा। हालेलुया। ऐसे दिलों के अंदर ख्वाहिशें उठती हैं, उसकी प्यार की, उसकी मोहब्बत की, जो उसकी जो समुद्र जो है वो ठाके मारता है। कौन सा समुद्र हमारे दिलों के अंदर, किसकी मोहब्बत का जो है कि मौजें हमारे दिलों के अंदर उठती है। ये कौन सी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर छा गई है, जो है हमें खुदा से दूर किए हुए है। अगर तो दुल्हन का रोजा रखेंगे तो फिर मोहब्बत खुदा से होगी, मसीह से होगी, होली स्पिरिट से होगी। हालेलुया। ये है नए अहद का रोजा, ये नई मशकों के अंदर भरा जाता है। ये कोरा कपड़ा है, ये पुराने के साथ छोड़ा नहीं जा सकता है। नया यह मोहब्बत का रोजा है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसकी इश्क का रोजा है। आमीन। ये जो है वो मान है जो अपनी दुल्हन के ऊपर करता है। आप कौन है जो यीशु मसीह के मान को रखेगा? कौन है जो यीशु मसीह के मान को रखना चाहता है? अगर यीशु मसीह के का मान आपके ऊपर है कि ये मेरी दुल्हन है, उसका क्लेम है मेरा, उसका अगर वो मेरे ऊपर क्लेम करता है ये मेरी दुल्हन है, तो फिर मैं उसका मान रखूंगा। और वो मान क्या है? मैं उसकी मोहब्बत में लेकिन मुझे कलाम पढ़े कितनी देर हो गई है, और मुझे दुआ करते कि ये हमें कितनी देर हो गई है, मुझे जो है उसकी हजूरी में जाए में कितनी देर हो गई है। ये कैसी मोहब्बत है मेरी, मैं अपने दुल्हा से कैसी मोहब्बत करता हूँ। मुझे तो उसकी बात को, उससे बातें करने का जो है फुर्सत नहीं है, मुझे जो है उसको पढ़ने की फुर्सत नहीं है, मुझे उसकी हजूरी में जाने की फुर्सत नहीं है। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा दुल्हन का रोजा है। ये कौन सी भूख और प्यास की मारी फिरती है। ये दुल्हन कैसी दुल्हन है जिसको जो है और तरह की प्यास या और तरह की भूख लगती है। Praise the Lord. Hallelujah. अगर हम उसकी इश्क के बीमार हैं तो उससे बात किए हुए हम उससे मिले बगैर कैसे रह सकते हैं? उससे बात की कैसे रह सकते हैं? हमारा कनेक्शन कैसा है उसके साथ, हमारी कम्युनिकेशन कैसी है? दुल्हन का रोजा आपको इस बात के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए तो कलीसिया कमजोर है क्योंकि दुल्हन का रोजा नहीं है। ये जो है पुराने पोशाकों के अंदर जो है वो कोरा कपड़ा लगाया हुआ है, साथ में पुराना और साथ में यह नया, साथ में पुरानी मश्क और नया कौन सी है बोलिए? नहीं है। यीशु मसीह ने कहा नई मैं नई मश्कों के अंदर भर गए हैं। यह कोरे के साथ, ये कोरे का पैबंद पुरानी पोशाक के साथ नहीं लगाता। हमने ये तरीका बिगाड़ा हुआ है, हमने रोजे के तरीके को बिगाड़ा हुआ है, हमने यीशु मसीह के नए अहद के रोजे को बिगाड़ दिया है। हम तो अपने ही चक्रों के अंदर, दुल्हन तो अपने बनाव संघार के अंदर जो है, दुनिया के बनाव संघार के अंदर लगी हुई है। लेकिन जो है जिस मोहब्बत का यीशु मसीह जिक्र कर रहा है, जिस बनाव संघार का या वो जिस तैयारी का वो जिक्र कर रहा है, उससे हम तो कई कोसों दूर बैठे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको उठाना चाहता हूँ, क्या आप दुल्हन हैं? हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हमारी तो जब तक जितनी देर जो है हम क्राइस्ट के साथ चल रहे हैं, उस वक्त तो हमारा इश्क तो जो है वो बुलंदियों तक पहुंच जाना चाहिए था। हमारी मोहब्बत उसके साथ जो है वो बुलंदियों तक पहुंच जानी चाहिए। और उसकी उस मोहब्बत को जानो जो समझने से बिल्कुल बाहर है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को जानो जो समझने से बिल्कुल बाहर है। कभी हमने इसलिए सोचा कि मुझे उसकी लंबाई को जानना, मुझे उसकी चौड़ाई को जानना, मुझे उसकी गहराई को, मुझे उसकी ऊंचाई को जानना है। हमने किसी एक डिमेंशन को भी नहीं पकड़ा। अगर उसकी एक डिमेंशन को भी पकड़ेंगे तो फिर जो है ये वादा है उन तमाम जो है उस सारी दुल्हन के लिए वादा है कि वो उसे रूबरू दुल्हा को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक जो है हमारे लिए खुदा की आँखें नहीं पैदा होती हैं, ऐसी आँखें ऐसा मातम उठे कि मालूम हो कि रूह कुदस भी उन आँखों के साथ आपके साथ शामिल हो जाए कि देख बाप
ये बाइबल मुकद्दस में जो है जब आप ये रोमियो 8 बाब में पढ़ते हैं तो लिखा है रूह कुदस क्या करता है, आंखें भर भर कर हमारी क्या करता है, बोलिए शिफायत करता है। वो क्यों शिफायत करता है? वो बाप से कहता है, बाप ये देख ये यीशु की मोहब्बत में जो है ये बह चले हैं। बाप ये देखो किस तौर पर जो है वो यीशु की मोहब्बत में जो है ये सरशार हुए हैं, ये किस कदर जो है उसमें जो है वो ममूर हुए हैं। इनकी सुन ले। क्या आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसका मकसद क्या है? यीशु मसीह ने जो है क्यों कहा कि मेरे जाने के बाद ये खुशी नहीं मातम करेंगे? ये खुशी नहीं क्या करेंगे? मेरे जाने के बाद क्या करेंगे? ये मातम करेंगे। मेरे जाने के बाद खुशी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ये मेरे जाने के बाद मातम करेंगे, रोजा रखेंगे। वाई ताकि क्या हो सके कि इनके अंदर ज़माने की ख्वाहिश ना पैदा हो जाए, ताकि जो है इनका मातम ये बात बताता चला जाए कि ये क्या है, दुनिया के नहीं हैं, हम इस दुनिया के अंदर नहीं हैं। मैं जो है दुल्हन क्या करेंगे, अपने दुल्हा के पास जाने वाली है, इसलिए वो जो उनका मातम इस बात की गवाही देगा। आवाज बुलंद होगी इस मातम की, ये आहें बुलंद होंगी कि हम हमारे अंदर इस जमाने की ख्वाहिशात नहीं हैं और इस बात के लिए मुंतजर हैं। आपको मालूम है यूहन्ना क्या कहता है अपने खत के अंदर? वो कहता है हमने क्या किया, हमने उसको सुना। यूहन्ना के खत पहले खत से पहले बाप इसके पहले में क्या लिखा है? हमने उसको सुना, अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से उसे छुआ। लेकिन मैं आज ये मातम करता हूँ, मैं आज यह रोजा रखता हूँ। अब उसकी दुल्हन क्या करती है? यूहन्ना जिसने से देखा, गौर से देखा, सुना, उसको छुआ, उसकी छाती के साथ जो है वो लिपट जाता था, उसके साथ वो लिपट जाता था। लेकिन अब उसे नजर नहीं आता। वो बदनस के जजीरे के अंदर वो आही भरता था, वो मातम करता था कि मैं उस जलाली यीशु को देखूंगा। हालेलुया। मैं भी ऐसा ही करता हूँ जिस तरह उसने उसे सुना, उसने उसे देखा, उसने गौर से देखा और उसको छुआ और ये जाहिर हुआ, उससे जिंदगी जाहिर हुई। और मैं फिर से उसको देखने के लिए इस हालत के अंदर आया हूँ। अजीज भाइयों, दुल्हन की रोजा रखने का मकसद ये है कि मैं फिर इसी तरह जिस तरह यूहन्ना को ये तजर्बा हासिल हुआ है, मैं उस तजर्बे को हासिल करूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें है क्या शामिल है? इस रोजे के अंदर गौर से सुनिए, इस रोजे में दूसरी आमद की बड़ी खुशी शामिल है। इस बड़े मातम में वो जो है दूसरी आमद की बड़ी खुशी छिपी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों रोजा रखूं? मैं क्यों जो है मातम करूं? मैं उस खुशी का, मैं इस दुनिया की खुशी का क्यों तालिब ना हूं? मैं दुनिया की ख्वाहिशों का तालिब क्यों ना हूं? मैं जो है इस खाकी सड़कों का, इस खाकी जो है ईंट पत्थर के घरों का क्यों तालिब बनूं? क्योंकि मुझे तो इल्म है, मैं तो सोने की सड़कों पर चलूंगा। हालेलुया। मुझे तो वो जो है वो चिकोर जो है घरों की जो है उम्मीद है। मैं उस दूसरी आमद की उस खुशी को जिसमें मैं अपने दुल्हा को देखूंगा, मैं उस जो है उसी को देखूंगा जिसने मेरे साथ मोहब्बत की है, जिसने मेरे लिए जान को कुर्बान किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ जीसस क्राइस्ट। दुल्हन के रोजे का मकसद है उस पाकीज़गी को हासिल करना, ताकि क्या हो सके वो उसके तल्लुकात जो है उसके जो है दुल्हे के साथ हमेशा कायम और दायम रहे। दुल्हन रोजा क्यों रखे? दुल्हन जो है रोजे के अंदर क्यों आए? दुल्हन मातम के अंदर क्यों आए? ताकि उसकी ताबेदारी में कायम हो जाए। और उस जिस्म की ख्वाहिशों को जिसे नापाक करती है वो उससे रुक जाए। हर तरह की हरामकारी, नापाकी, बुतपरस्ती, शहवतपरस्ती, जंगजूरी, अदावती, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिगड़े, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग, ये सब जो उसके तल्लुकात में खराबी पैदा करती है। अगर दुल्हन के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं और उसको चाहिए कि वो दुल्हन के रोजा में आए, दुल्हन का रोजा रखे। आमीन।
वो उस फास्टिंग के अंदर आए और उस मातम के अंदर आए कि मैं क्या अपने मसीह से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके प्यार में सरशार हूँ। अगर दुल्हन कलीसिया इस बात को नहीं समझेगी तो याद रखिए वो दुल्हा का दीदार हासिल नहीं कर सकती है। हम उसको रूबरू देखेंगे, बाइबल मुकद्दस में लिखा है ऐसे रूबरू देखेंगे। हम क्या आप उसको रूबरू देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ उसको रूबरू देखूं, लेकिन मुझे क्या करना होगा? मुझे मातम करना होगा। मुझे क्या करना होगा? मुझे रोज़ा रखना होगा। दुल्हन ब्राइडग्रूम फास्टिंग करना होगा। ये मैं जब आप जो है वो इस रोज़ा में खड़े होंगे, अजीब भाई को आप अपनी मोहब्बत को बयान करेंगे। नहीं मैं नई मशहूर भर्ती हूँ, कोई कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक के साथ नहीं लगाती, नहीं तो क्या होगा, खींच जाएगा। इससे पहले कि सब चीज़ें जब बिगाड़ पैदा हो, इसलिए कि मैं बह जाए, तो क्या करना चाहिए? यीशु मसीह की मोहब्बत में सरशारी को दिखाइए। इस नए तर्ज के रोज़े को अपनी ज़िंदगी के अंदर आने दीजिए। अगर आप जो है वो इंतजार के लिए रोज़ा रखते हैं, आप किसी काम के लिए रोज़ा रखते हैं और किसी और या किसी मकसद जो है आपको जो है दुनियावी कोई मकसद है, हम उसके लिए भी रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में रोज़ा इस मकसद के लिए है कि हम यीशु मसीह की मोहब्बत में सरशार हैं, हम लव सिक हैं और उसकी दूसरी आमद के लिए मुंतज़र हैं। हम दूसरी आमद के लिए जो है वो तैयार हो रहे हैं। हम जो है वो बेदार रहेंगे, उसकी मोहब्बत में बेदार होशियार रहेंगे और सुस्ती काहली को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं आने देंगे। उन 5 कुंवारियों की मानद जो सो गई, बल्कि हमेशा बेदार होशियार। हालेलुया! ये है दुल्हन का रोज़ा, ये है वो मान जो यीशु मसीह ने क्या वो यूहन्ना के शागिर्दों के साथ जब वो बयान किया है। आप मसीह से कितनी मोहब्बत करते हैं? तो फिर क्या करेंगे? ब्राइडग्रूम फास्टिंग। आमेन। कौन सी फास्टिंग? ब्राइडग्रूम फास्टिंग। हमारी जिंदगी की है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए उसकी मोहब्बत में साझा करते हैं और आइंदा से नए अहद का रोज़ा हमारी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू करें और उसके ज़रिए से हम यीशु मसीह की आमद की अपने आप को तैयार करना शुरू करें। आमीन। आइए सब कुछ करें। पूरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक के साथ मत लगाइए। नहीं मैं को पुरानी मशकों में मत भरिए। यीशु मसीह के खून से उसका मुद्दा हो गया। इसलिए जो यीशु मसीह ने तालीम दी है उसको समझिए। एक नया मनसूबा खुदा ने अपनी कलीसिया के रखा है कि वो उसकी मोहब्बत में तड़पती रहे, उसकी मोहब्बत में सरशार रहे। आप मसीह के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, आप मसीह के साथ कितने वफादार हैं। बेवफाई तो हमारी जिंदगी के अंदर तो नहीं है, जुदाई तो हमारी जिंदगी के अंदर तो नहीं है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर दुल्हा की तैयारी नहीं है, दुल्हा के लिए तैयारी नहीं है, तो फिर हमें आज अपने आप को जांचना होगा और उसकी पड़ताल करना होगी। अगर मैं कलीसिया का हिस्सा हूँ तो मुझे अपनी मोहब्बत को और उसकी सरशादी को दिखाना होगा, अपनी लव सिकनेस को यीशु मसीह के लिए पेश करना होगा। वो दिलों को तसल्ली और इत्मीनान देता है और रूहुल कुदस के वसीले से खुदा की तह की बातें बताकर हमें तसल्ली और इत्मीनान देता है कि उम्मीद रख मेरी दुल्हन उम्मीद रख, मेरी दुल्हन उम्मीद रख और कायम रहे, मैं जल्द आने वाला हूँ। रूह और दुल्हन कहती है आ। अगर आप रूहुल कुदस के साथ मिल जाएंगे तो फिर दुल्हन और रूह यह एक आवाज के साथ कहने वाली होगी। यह मुकाशफा की किताब की आखिरी आयत ये है, रूह और दुल्हन कहती है आ। दुल्हन प्यार है, दुल्हन उसकी मोहब्बत में सरशार है। अगर दुल्हन उसकी मोहब्बत में सरशार है तो फिर वो क्या रूहुल कुदस के साथ मिलकर कहने वाले होंगी। क्या आप रूहुल कुदस के साथ मिलकर जो है वो फेलोशिप कर रहे हैं? आपको क्या रूहुल कुदस के साथ फेलोशिप करने की जरूरत है, उसके साथ जो है अपना वक्त गुजारने की जरूरत है, आपको उसके साथ वक्त बिताने की जरूरत है ताकि आप खुदा की मोहब्बत को जान सके, आप मसीह की मोहब्बत को जान सके कि वो दुल्हा क्या चाहता है, दुल्हा के अंदर क्या ख्वाहिश है।
हालेलुया। आपको जो है इस फास्टिंग के अंदर आना होगा जो क्राइस्ट ने कही है, ताकि दुल्हन इस जगह के ऊपर खड़ी हो जाए और रूह कुदस के साथ एक आवाज हो जाए कि आ। दुल्हन और दुल्हन कहती है आ, और जो सुने वो भी आए। हालेलुया। आब हयात मुफ्त में पाए, आब हयात मुफ्त में पाए। दुल्हन के लिए आब हयात मुफ्त जो है वो है, वो उसकी प्यास आब हयात से बुझा देगा, वो उसे जिंदगी के दरख्त से खिलाएगा और उसकी भूख जाती रहेगी। वहाँ ना प्यास होगी ना भूख होगी, क्योंकि वहाँ पर बड़ा होगा इसका दुल्हा, उसके दीदार के से जो है वो उसका जी भर जाएगा। I praise you Lord। मैं इस वक्त आपकी दुआ करना चाहता हूँ कि आप इस बात के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, दुल्हन के रोजे को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए, कलीसिया के रोजे को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तो शुक्र तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करता हूँ इस तालीम के लिए जो तूने अकरम दी है, और हमें ये तौफीक दे कि हम तेरी तालीम को माने, हम तेरी तालीम को एक मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने वाले हों। हम खुदा माफ़ी मांगते हैं कि हम दुल्हन की तैयारी नहीं की है, दुल्हन एकदम तेरी मोहब्बत पे पीछे रह गई है। आज से ये हम अहद करती हैं कि हम एकदम खुदा तैयारी करेंगे, एकदम खुदा उस भूख और प्यास के तारीफ होंगे जिसके जरिए से एकदम खुदा हम तेरी मोहब्बत में नजर आए, हम तेरे इश्क के अंदर नजर आए, हम तेरे प्यार में नजर आए, हम तेरी खुरबत और तेरी नजदीकी को हासिल करें। एकदम खुदा हमारे दिल के अंदर ये ख्वाहिश बढ़ती चली जाए और ये एकदम कायम रहे, ये बिला रहे और ये कभी मान ना पड़े, बल्कि एकदम तेरी मोहब्बत में हम तुझसे गिरते रहें, तेरी हुजूरी में रहें और तेरी तारीफ रहें। हम जानते हैं तू जल्द आने वाला है। ऐ दुल्हा आ, तेरी दुल्हन तैयार हो रही है। खुदा हमारी सारी कमियों और कमजोरियों को माफ कर दे और आज से यह अहद करते हैं कि हम एकदम खुदा जैसा तूने कहा है कि मेरे बाद ये रोजा रखेंगे, मेरे जुदा हो जाने के बाद ये रोजा रखेंगे। हाँ एकदम खुदा हम ये देखने के मुंतजर हैं, हम तेरे दीदार के मुंतजर हैं, हम ये रूबरू देखने के मुंतजर हैं और इसके लिए हमें हर एक कीमत अदा करेंगे, इसलिए दुनिया को हम रद्द कर देंगे। एकदम खुदा तेरे तारीफ रहेंगे ताकि एकदम इस काबिल हो जाएं, इस लेवल के ऊपर खड़े हो जाएं कि जब तू आए तो हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें और फिर हमेशा तेरे साथ रहें। एकदम खुदा इस गुरबत का मैं मुंतजर हूँ, इस हुजूरी का मैं मुंतजर हूँ, इस दीदार का मैं तालिब हूँ और हमें से हर एक को एकदम खुदा ये गुरबत और ये नजदीकी अता देना, हर एक को ये प्यारी बख्श दे ताकि एकदम खुदा तेरी हुजूरी में कायम हो जाए। आज की सारी बरकत का शुक्र करता हूं। हम दुल्हन के लिए मुंतज़िर हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं सिर्फ आपको आखिरी कसम पर मसीह से कितनी मोहब्बत करता हूं। ये दुल्हन का रोजा इस बात की दुआ है। जुमेरात को कोशिश कीजिए कि आप फैमिलीज के साथ दूसरों को उपहार कराएं ताकि दुआ में वक्त ज़्यादा सीखें, बाइबल पढ़ने में वक्त ज़्यादा सीखें, स्टडी में वक्त ज़्यादा सीखें, कलीसिया की रफ़ाक़त में वक्त ज़्यादा सीखें। ये किस लिए? ये बेसिकली हम दुल्हन अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज तक मलका को मालूम है एक्सपीरियंस बादशाह ने जब उसे मलका बनना था कितने साल लगे? एक पूरा साल लगा उसे तैयारी करने में। सोचिए वो बादशाह का बादशाह, तो कौन सा